इमेट्रोपिया होता है व्हेन द पैरेलल रेस कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी आर फोकस ऑन द रेटिना, दैट इज कॉल्ड इमेट्रोपिया। तो इमेट्रोपिक पेशेंट है तो वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को भी देखने के लिए, नियर ऑब्जेक्ट के देखने के लिए, नियर ऑब्जेक्ट के लिए उसका n/6 होगा एंड डिस्टेंस के लिए 6/6। पर इफ जैसे इमेट्रोपिया हो गया ना, एमेट्रोपिया, ई और ए में फर्क है, समझ रहे? एमेट्रोपिया क्या होता है? व्हेन द पैरेलल रेस कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी आर नॉट फोकस्ड ऑन द रेटिना। रेटिना का जो पॉइंट ऑफ फोकस है, रेटिना का फोकस पॉइंट, वहां पर फोकस ना हो करके इट फोकस अदर देन द रेटिना, दैट इज कॉल्ड एमेट्रोपिया। तो एमेट्रोपिया मीन्स दैट इज द रिफ्रैक्टिव एरर। समझ में आया? ये गर्मी क्यों लग रही है आज? ये चल रहा है ऐसे, चालू करो तो समझ में आ गया। तो व्हाट इज इमेट्रोपिया एंड व्हाट इज एमेट्रोपिया? इमेट्रोपिया मीन्स नॉर्मल आई जिसका विजुअल एक्विटी 6/6 है, एंड एमेट्रोपिया मीन्स when patient's visual acuity is less than 6/6, less than 6/6. This is called emetropia and emetropia. According to this focusing point, it is divided into 3 groups. First one is the hypermetropia, or and second one is myopia, and third one is the astigmatism. Then what is the hypermetropia? When the हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? डिस्टेंस विजन एज वेल एज नियर विजन both are disturbed, both are not normal. Patient is not able to clearly read the see the near object as well as distance. But in case of the myopia, person is able to see clearly in the near object, but having difficulty to see the distance object form. And hypermetropia, here focusing point is behind the retina or in front of the retina? Hypermetropia. In hypermetropic patient, parallel rays coming from the infinity are focused behind the retina because size of the eyeball is small, and no, size of the eyeball is small, and in hypermetropic patient, anterior chamber is also shallow as compared to the myopic eye. Cornea may be microcornea, और वो तो दूसरा है, कर्वेचर तो दूसरा है, वो तो एस्टिग्मेटिज्म में आएगा. When the two meridians of rays are coming from the infinity are focused different points. There is no any focusing point, but there is a line of focus. Line of focus where multiple images are formed. That's why patient is see the blurred image. Meridian due to different in the curvature. Curvature is increase or decrease. So hypermetropia, eyeball is small and AC is shallow, and hypermetropic patient are more prone to close angle glaucoma. Okay, and hypermetropia may be 3 types. Axial hypermetropia, and second one is curvature myopia, and third is index. And
Axial myopia is axial hypermetropia is occur due to decrease in the axial length, and if 1 millimeter decrease in the axial length is causes 3 diopter of hypermetropia. And curvature hypermetropia means there is decrease in the curvature, and index there is change in the refractive index of the lens, and जो differ in the different persons. So hypermetropia is also divided into three other groups: simple hypermetropia, compound hypermetropia, and mixed hypermetropia. Simple hypermetropia means, what is called simple? Both the rays coming from both the meridians, they are focused, maybe where focused? That is called the myopic hypermetropia eyes, maybe one diopter myopic or one diopter hypermetropic. मतलब जो पैरेलल रेस डिस्टेंस से आ रहा है इन्फिनिटी से, दे आर either focused, both rays are focused in front of the retina, or both rays are focuses behind the retina. So these are called myopic hypermetropia and simple or hypermetropic, maybe plus 1 diopter plus minus. And compound, some rays are focused in front and some rays are focused behind. So there is compound, maybe hypermetropic, or some rays are focused in front and some rays are focused behind. And compound and hypermetropia is corrected by convex lens. Why convex lens is needed for correction of the hypermetropia? Because rays are focusing behind the retina, so we need the converging lens to focus the image at the point of focus. So this is called hypermetropic correction. And myopia, नहीं, hypermetropia में ये term सुना हुआ है, latent hypermetropia and manifest hypermetropia? नहीं, latent सुना है, कभी नहीं सुना? लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया एंड मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया, जैसे बहुत सारा लोग कंप्लेन करते हैं, जब तुम लोग बोलोगे कि 6 विजन है, फिर भी पेशेंट कंप्लेन करता है, दैट इज हैविंग द हेडेक, इन दैट इज कॉल्ड एस्थेनोपिक सिम्टम्स. एंड लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया मतलब जैसे बच्चा पैदा हुआ तो सबसे हाईएस्ट हाइपरमेट्रोपिक होता है, अकॉर्डिंग टू एज जैसे जैसे ग्रो करता जाएगा तो उसका आई बॉल का साइज बढ़ता जाएगा. एट द एज ऑफ 5 years जो नॉर्मल एक एडल्ट का आई बॉल का साइज रहता है उतना बड़ा साइज हो जाएगा, देन दैट इज द इमेट्रोपिक नॉर्मल आई. तो हाइपरमेट्रोपिया ग्रेजुअली कम होता जाएगा, समझ रहे हैं? तो शुरू में एकोमोडेशन ज्यादा रहता है, फिर जैसे ही वो उसको एकोमोडेशन करके उसने विजन 6 कर लेता है, समझ रहे हैं, रेस्टिंग कर, पर एक्सेसिव एकोमोडेशन की वजह से उसको हेडेक होने लगता है, दैट इज कॉल्ड एस्थेनोपिक सिम्टम्स या हेडेक. एंड लेटेंट,
तुमको लगेगा कि इसका तो हाइपरमेट्रोपिया है नहीं, पर लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया को कैसे डायग्नोज करोगे? टू पैरालाइज द एकोमोडेशन बाई साइक्लोप्लेजिक एंड, तो इसीलिए जब तुम रिफ्रैक्शन करोगे तो जो साइक्लोमेड आई ड्रॉप्स डालोगे या बच्चा है तो एट्रोपिन आई ड्रॉप्स डालोगे, एट्रोपिन करके, तो उससे क्या है, इसका एकोमोडेशन लॉस हो जाएगा, तो उसका एक्चुअल विजुअल एक्विटी आएगा, समझ रहे? तो तो जो एकोमोडेशन की वजह से जो अपना विजुअल एक्विटी को वो नॉर्मल करने की कोशिश करता है, हाईली एकोमोडेटिव पावर की वजह से। एकोमोडेटिव पावर कौन सा करता है? सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल, ठीक है, सिलियरी मसल एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द प्यूपिल, तो उस तरह से, तो दैट इज कॉल्ड लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया। पर सिलियरी मसल्स के अलावा भी अगर उसको हाइपरमेट्रोपिया है तो दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्ट hypermetropia. Manifest hypermetropia is again divided into two groups. That is called facultative hypermetropia and absolute hypermetropia. Facultative hypermetropia means, facultative hypermetropia मतलब वो accommodation से करेक्ट करेगा उसको, समझ रहे? पर जब उसको ये एट्रोपिनाइज कर दोगे या साइक्लोमेड आई ड्रॉप्स कर दोगे तो जो टोटल जो रेस्ट ऑफ द उसका हाइपरमेट्रोपिया है स्टेटस, दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्ट। तो मैनिफेस्ट में भी टू टाइप्स है, फैकल्टेटिव एंड अब्सोल्यूट। तो फैकल्टेटिव इज करेक्टेड बाय एकोमोडेशन एंड अब्सोल्यूट इज नॉट करेक्टेड बाय एकोमोडेशन। बट पिन होल से विजन लोगे तो पेशेंट का विजन पिन होल से कितना आएगा? मान लो 660 है नॉर्मल विजन, फिर पिन होल से लोगे तो विजन आ रहा है 66, इट मीन्स पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम रिफ्रैक्टिव एरर। और व्हाई विजन इज इंप्रूव्ड विथ पिन होल? क्योंकि देखो पेरिफेरल से जितनी भी रेस आ रही है वो पिन होल के द्वारा ब्लॉक्ड हो जाएगा। ओनली सेंट्रल रेस जो इंफिनिटी से आ रही है, वो पैरेलल रेस जो है वो जा करके रेटिना में फोकस हो रही है, तो उसको क्या है, ये जो अदर रेस की वजह से जो भी इमेज जो देख रहा है जिसमें ब्लरिंग हो जा रहा है, डिस्टॉर्शन ऑफ इमेज हो रहा है, तो वो डिस्टॉर्शन ना हो करके उसमें क्या है, क्लैरिटी आएगी। दैट्स व्हाई विजन इज इम्प्रूव्ड विथ पिन होल, समझ रहे? और ये तुम्हारा फैकल्टेटिव हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, मैनिफेस्ट, लेटेंट। लेटेंट मतलब ये सिलियरी मसल्स की वजह, सिलियरी मसल नॉर्मली एकोमोडेट करते हैं। तुमने देखा होगा बहुत सारे हाइपरमेट्रोपिक या मायोपिक रहते हैं, मायोपिक पेशेंट लोगों में देखा होगा डिस्टेंस का उसको दिखता नहीं है, नजदीक का दिखता है, पर अगर डिस्टेंस को देखता करे तो आई बॉल छोटा करने लगता है और ये जो इंटरपाल्पेब्रल एपर्चर है सैलो रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एकोमोडेशन तो कर रहा है, उसके साथ ही वो जो डिस्टेंस इमेज है उसको फोकस करने की कोशिश कर रहा है, दैट्स व्हाई आई छोटा करने लगता है, तो उसका मसल्स की पावर और वो इमेज फिर क्लियर दिखने लगता है, समझ रहे? तो ये तुम्हारा क्या हो गया, हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया इज हाउ टू करेक्ट, व्हिच इज द बेस्ट वे टू ट्रीट द हाइपरमेट्रोपिया? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मतलब स्पेक्टेकल्स दोगे, दूसरा क्या दोगे, कॉन्टेक्ट लेंस दोगे, और तीसरा क्या दोगे, सर्जरी करोगे। तो सबसे बेस्ट क्या होता है, स्पेक्टेकल्स, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिक सबसे हाईएस्ट हाइपरमेट्रोपिक कौन होता है, एक तो बच्चा होगा और दूसरा कौन होगा, अपेकिक आई। When the crystalline lens is absent in their place, that is called aphakia. And aphakia, it may be congenital and it may be acquired. Congenital means since birth there is maybe lens are not developed or maybe displaced from their normal position, maybe anteriorly displaced or posteriorly displaced or subluxated, or sometimes due to
trauma, lens is displaced and rest in the retina. So that condition is called aphakia. And aphakic person is hypermetropia, हाई हाइपरमेट्रोप बोलते हैं. एंड इसमें क्या रहता है, इसको +10 डायोप्टर डिस्टेंस के लिए देंगे, प्लस माइनस फिर और +3 to +4 डायोप्टर एडिशन करोगे फॉर नियर करेक्शन के लिए. और +10 डायोप्टर में माइनस प्लस माइनस सिलेंडर दोगे अकॉर्डिंग टू द एस्टिग्मेटिज्म. पर स्पेक्टेकल से क्या होगा, स्पेक्टेकल्स में पावर ज्यादा है. वन आई इज इमेट्रोपिक एंड अदर आई इज हाइपरमेट्रोप. तो उसको अगर अदर आई में ग्लासेस दोगे तो वो तो बियर नहीं कर पाएगा ना. क्यों? व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज ऑकर? डिस्टॉर्शन होगा, इमेज डेप्थ ऑफ परसेप्शन नहीं होगा, मैग्निफिकेशन इज मोर. इन हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट मैग्निफिकेशन इज 30 टाइम्स इंक्रीज्ड. तो वन आई से तुम्हारा नॉर्मल दिख रहा है और अदर आई हाइपरमेट्रोपिक है, तो देयर इज द फ्यूजन ऑफ इमेज कहाँ होगा? एक तुम्हारा मिनिफिकेशन हो रहा है, एक तरफ मैग्निफिकेशन हो रहा है, तो उसको फ्यूजन भी करोगे तो दोनों एक सिंगल इमेज तो बनेगा नहीं. तो देयर इज डिस्टॉर्शन ऑफ इमेज एंड डेप्थ परसेप्शन होगा. जैसे बहुत सारे लोग को देखना फेकिक जो ग्लासेस लगाए रहते, कुछ यहाँ पर रखा हुआ है, उसको उठाने के लिए वो जाएगा पर वो यहाँ पर पकड़ेगा ऐसा. या कई बार जैसे ओल्ड एज में देखा होगा, ग्लास कहीं रखा है, वो उठाने के लिए जा रहा है और वो ग्लास उसको लग रहा है मैं पकड़ रहा हूं, पर वो ग्लास गिर जा रहा है, वो हाथ में आ रहे हैं. दीज आर ड्यू टू द मैग्निफिकेशन एंड डेप्थ ऑफ परसेप्शन. क्योंकि उसको स्टीरियोप्सिस होगा ना, कि उसको लगेगा ये यहाँ पर है पर वो इमेज यहाँ है ही नहीं, वो और आगे है. और इसमें क्या होता है, चश्मे से एक तो मैग्निफिकेशन होगा, डिस्टॉर्शन होगा, इम्बैलेंस होगा और फील्ड ऑफ विजन तुम्हारा कम हो जाएगा. पर यूनिऑकुलर अफेकिया है तो उसको या तो आप दूसरा ट्रीटमेंट है, या तो कॉर्निया की सर्जरी करो या फिर इंट्राऑकुलर लेंस इम्प्लांट करो. तो पहले तो इंट्राऑकुलर लेंस था नहीं, तो पहले अफेकिक कर देते थे, एक आई वो ऐसे ही चलता था उसका विदाउट ग्लासेस. फिर अदर आई जब ऑपरेट हो जाता था तो बोथ आई का उसको फिर बोथ आई के लिए अफेकिक ग्लास प्रिस्क्राइब कर देते थे. तो बोथ आई अफेकिया रहेगा तो वो इजीली उस पे डिस्पैरिटी ऑफ इमेज नहीं आएगा. इसमें समझ में आया? हाथ कुछ समझ में आ रहा है? तो तुम लोग पढ़ के आए नहीं हो, एक्चुअली पढ़ के आना चाहिए, कंफ्यूजिंग चैप्टर है. तो और बच्चे हैं और ओल्ड एज हैं तो इनके लिए बेस्ट तो चश्मा है. कॉन्टेक्ट लेंस भी दे सकते हो, पर कॉन्टेक्ट लेंस बच्चा लगाएगा कैसे? ओल्ड एज वाले लोग कैसे लगाएंगे? वो तो यंग एज के लोग हैं जो अपना कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर सकते हैं, पर ओल्ड एज और ये पीडियाट्रिक एज ग्रुप पे तो वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड द कॉन्टेक्ट लेंस. एंड सर्जरी करोगे थर्ड लेसिक. तो ये तुम्हारा हो गया हाइपरमेट्रोपिया का ट्रीटमेंट. ठीक है, अब हम आ गए कहाँ पर? मायोपिया. अब मायोपिया को कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज मायोपिया? When the parallel rays coming from the infinity are focused in front of the retina. In front of the retina क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, तुम्हारा जैसे आई बॉल है, ये आई बॉल बड़ा हो गया तो मान लो यहां पर तुम्हारा रेटिना का लेयर है, पर आई बॉल की साइज बढ़ जाने की वजह से ये जो तुम्हारा एक्सियल लेंथ बढ़ गया, तो जो इन्फिनिटी से जो रेस आ रहा है वो रेटिना यहां पर फोकस होगा, जबकि रेटिना पीछे है. दैट्स व्हाई नियर ऑब्जेक्ट्स को तो वो फोकस कर लेता है एकोमोडेशन की वजह से, तो नियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजिबल रहेगा, पर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से जो रेस आएगी उसको फोकस कहां पर हो रहा है? रेटिना के पहले हो रहा है. तो ड्यू टू फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, दैट्स व्हाई पेशेंट इज सीन द ब्लर्ड इमेज. पूरा इमेज उसको ब्लड दिखेगा. समझ रहे? फिर तो हमको इसमें क्या चाहिए मायोपिया को करेक्ट करने के लिए?
कॉन्केव लेंस चाहिए। कॉन्केव लेंस क्या करेगा, उसको डाइवर्स करेगा। जो रेटिना के पहले यहाँ पर फोकस हो रहा है तो उसको डाइवर्स करके यहाँ पर रेटिना में फोकस करेगा। तो जब रेटिना में फोकस हो जाएगा तो इमेज को वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाएगा, बॉर्डर एंड साइज एंड शेप एंड कलर ऑफ द इमेजेस। सो दिस इज कॉल्ड मायोपिया। मायोपिया में भी simple myopia, that is also called physiological myopia, and third one is the pathological myopia. तो इसका भी ग्रेडिंग है, सिंपल मायोपिया, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। इफ द मायोपिया इज कितना -3 diopter, that is simple, and a 3 to 5 moderate, and a -6 to above, that is सीवियर हाइपरमेट्रोपिया। और फिर ये आगे चला जाएगा पैथोलॉजिकल नहीं मायोपिया। पैथोलॉजिकल मायोपिया क्यों होगा, इसमें पावर फ्रीक्वेंटली चेंज होगा एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द आई बॉल होगा। स्ट्रेचिंग ऑफ द आई बॉल होगा तो उसकी वजह से जो रेटिनल टिश्यूज है, विट्रियस है, उसमें भी डिजनरेशन होगा। दैट्स वाई जिन लोग मायोपिक है उन लोग को देखा होगा मॉस्किटो लाइक ब्लैक शैडोज आर moving in front of the eye, that is called, what is called, floaters। फ्लोटर्स क्यों होता है, डिजनरेशन की वजह से होता है, और ड्यू टू एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ द आई बॉल, कुछ आई बॉल स्ट्रेचिंग होने की वजह से स्क्लेरा थिन हो जाता है, तो जो थिकनेस है कम हो जाती है, उसकी वजह से तुमको कोराइड विजिबल होता है। दैट्स वाई ब्लूइश कलर में दिखता है, देखा होगा कुछ पेशेंट्स में ऐसा ब्लू डिस्कलरेशन ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ द स्क्लेरा। एंड नॉर्मली अगर मायोपिया है तो ये 21-22 एज तक तुम्हारा बढ़ेगा, ये पावर तुम्हारा अप एंड डाउन। फिर अकॉर्डिंग टू 21-22 एज आने के बाद तुम्हारा पावर का बढ़ना स्टॉप हो जाएगा। पर अगर पैथोलॉजिकल मायोपिया है तो पैथोलॉजिकल मायोपिया है तो वो उसके बाद भी उसका रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ता रहेगा और बार बार कंप्लेन करेगा, वो जाकर के फिर से अपना चश्मा चेंज करेगा और उसकी वजह से ये रेटिनल डिटेचमेंट होगा, स्ट्रेचिंग की वजह से रेटिना में होल होगा, फ्लोटर्स होगा, डिजनरेशन होगा, और मायोपिक पेशेंट आर मोर प्रोन टू रेटिनल डिटेचमेंट होगा, और फ्लोटर्स भी इसमें होगा, डिजनरेशन ज़्यादा होगा। तो रेटिनल होल किस में मिलता है, मायोपिक पेशेंट्स में मिलता है, और मायोपिक पेशेंट में क्या होगा, ओपन एंगल ग्लाकोमा होगा। हाइपरमेट्रोपिक में क्लोज एंगल ग्लाकोमा एंड मायोपिक आई आर प्रोन टू ओपन एंगल ग्लाकोमा। सो हाउ टू ट्रीट द मायोपिया, कॉन्केव लेंसेज, तो इसका भी वही सेम ट्रीटमेंट है, स्पेक्टेकल करेक्शन दोगे, कॉन्टेक्ट लेंस दोगे और लेसिक सर्जरी करोगे। तो कॉन्टेक्ट स्पेक्टेकल्स दोगे तो इसमें भी क्या दोगे, कॉन्केव लेंस दोगे इसमें, एंड साथ में अगर एस्टिग्मेटिज्म भी है तो साथ में एस्टिग्मेटिक करेक्शंस दोगे उसको, ठीक है। और कॉन्टेक्ट लेंस कब दोगे, शुरू में मायोपिया डायग्नोस हो गया तभी तुम कॉन्टेक्ट लेंस प्रोवाइड कर दोगे। जब उसका पावर बढ़ना कम होगा, नहीं तो तुमको तो बार बार कॉन्टेक्ट लेंस बदलना पड़ेगा, तो कितने बार फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट लेंस बदलोगे। कॉन्टेक्ट लेंस का भी ये ऐसा है कि उसको 8 आवर्स से ज्यादा तुम नहीं लगा सकते, ज्यादा लगाओगे तो क्या होगा, इसका क्या डिसएडवांटेज होगा, कॉर्निया में इब्रेशन होगा, अल्सर हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा, किरेटाइटिस हो जाएगा, और किरेटाइटिस होने के बाद कुछ पेशेंट्स को यूवेइटिस भी हो करके कुछ लोग का तो एब्सोल्यूट ग्लाकोमा तक भी पहुंच जाता है। कई कॉन्टेक्ट लेंस यूजर का सीडोमोनास इन्फेक्शन ये हो करके पूरा डिटेचमेंट हो करके पूरा पेन
पेनफुल ब्लाइंड आई में चला गया। मतलब दिस इज द सीवियर, हर किसी को नहीं होगा, हाँ, मतलब सीवियरिटी ऑफ द यूजिंग ऑफ कॉन्टेक्ट लेंस। पर इस पे बेस्ट क्या है अभी तक के लिए? बेस्ट करेक्शन है स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल को क्या है, तुम जब चाहो तब पहन सकते हो, बस इसमें क्या है, फ्रेम की वजह से तुम्हारा फील्ड ऑफ विजन थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। पर फील्ड ऑफ विजन क्या है, उतना तो जरूरत भी नहीं है, ये जो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है उतना तो वैसे भी जरूरत नहीं है। सामने में हमको ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, राइट आई से इमेज जो बन रहा है लेफ्ट आई से इमेज हो रहा है, दोनों मर्ज हो जा रहा है और हमको तो क्लियर इमेज दिख रहा है। ठीक है, अब ये तुम्हारा एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म क्यों होता है? इसमें कर्वेचर में चेंज होने की वजह से। तो एस्टिग्मेटिज्म जो होता है तो इसमें कॉर्नियल कर्वेचर जो है इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। तो हियर पैरेलल रेस कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी आर they are not focused in the one point, there is the multiple focal point are present, that's why patient is seen the blurred image। क्लियर कट इमेज उसको नहीं दिखता है, ब्लर्ड दिखेगा, क्योंकि देयर इज द लाइन ऑफ द फोकस। स्टम्प्स कैनाल पढ़े हो? स्टम्प्स कैनाल, स्लेम्स कैनाल वो तो अलग है, स्टम्प्स कैनाल एस्टिग्मेटिज्म में होता है। अलग अलग एक पूरा पॉइंट ऑफ फोकस होता है, थ्योरी में इसको पूरा डिटेल्स में पढ़ाते, हाँ वो बुक में जाके पढ़ना। तो पहले वाला फोकस यहाँ पर होगा, फिर दूसरा वाला ऑब्लिक होगा, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन फोकस होगा, फिर सर्कुलर होगा, फिर ओवल फोकस होगा, फिर हॉरिजॉन्टल इमेज का हॉरिजॉन्टल फोकस होगा, देन फिर ओवल फोकस होगा। तो इस तरह से वर्टिकल लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन तक मल्टीपल फोकस है, फोकस एक ही फोकल पॉइंट नहीं है। उसकी वजह से पेशेंट को तो आई में देखने में लगेगा कि उसको ठीक है, पर उसकी वजह से मतलब इमेज देखेगा सब है पर क्लैरिटी नहीं रहता है, समझ रहे हो? तो एस्टिग्मेटिज्म भी ये टू टाइप्स होता है, विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म एंड अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म। व्हाट इज विद द रूल? हाँ, तो वर्टिकल मेरिडियन इज मोर कर्व एंड हॉरिजॉन्टल मेरिडियन इज लेस कर्व, this is called with the rule astigmatism। and if horizontal meridian is more curved as compared to vertical meridian, that is called against the rule astigmatism। और एक और होता है उसमें मल्टीपल अलग अलग मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ना होकर के ऑब्लिक होता है, ऑब्लिक मेरिडियन। तो एक का जैसे तो वो राइट एंगल में कट करेगा एक दूसरे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रहेगा तो लाइक ऐसा रहेगा, ठीक है। और ये क्या है, इस तरह से रहेगा, एक तुम्हारा 30 डिग्रीज का बनाएगा और एक तुम्हारा 100 डिग्रीज का बनाएगा। तो इसको बोलते हैं क्या एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं? ऑब्लिक, ठीक है। तो एस्टिग्मेटिज्म हो गया, उसके बाद क्या हो गया? प्रेस बायोपिया। व्हाट इज प्रेस बायोपिया? तो ये कब होता है? प्रेस बायोपिया कब होता है? Presbyopia is a physiological condition in which when there is लेंस की डेंसिटी में फर्क होगा और लेंस का कर्वेचर में चेंजेस होता है। लेंस नॉर्मली जो है तो लेंस इलास्टिक होता है, हम जब नियर ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो लेंस का जो है पोस्टीरियर कैप्सूल इज मोर कर्व and anterior capsule is the less curve as compared to the posterior capsule। तो उसकी वजह से पोस्टीरियर कैप्सूल पे तो कोई चेंजेस नहीं होता है, पर एंटीरियर कैप्सूल में ड्यू टू इलास्टिसिटी चेंज कब होता है? जब उसमें कैटरेक्ट बनने लगता है या फिर धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म की वजह से फाइबर्स में इलास्टिक पावर कम होता जाता है। तो ये क्या है, लेंस जो है तुम्हारा एक्सटेंड होगा या फिर सिलियरी मसल्स के द्वारा जो न्यूज स्ट्रेचिंग करेगा, समझ? तो तुम थिकनेस उसका बढ़ेगा और नियर ऑब्जेक्ट को फोकस करेगा। पर जब ये इलास्टिसिटी कम हो जाती है अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ 40 इयर्स, तब ये तुम्हारा
पहले तुमको, और एक कंडीशन होता है मतलब एग्जैक्ट ये जो पोस्टीरियर कर्वेचर है और एंटीरियर कर्वेचर बोथ बराबर हो जाते हैं एट द एट ऑफ हाईएस्ट एकोमोडेशन। तो पोस्टीरियर कैप्सूल तो वैसे ही रहेगा, पर इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्शन होगा एंटीरियर कैप्सूल में। एंटीरियर कैप्सूल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये थिकनेस ऑफ द लेंस बढ़ेगा और उससे नियर ऑब्जेक्ट तुम्हारा फोकस होगा। ठीक है, तो इलास्टिसिटी कम होने की वजह से, और तुम्हारा ये जो सर्जरी हो जाता है स्यूडोफेकिया एंड अफेकिया, इसमें क्या है, पूरा ही लॉस हो जाता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन कौन करता है? सिलियरी मसल्स करता है। सिलियरी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, उससे लेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा, उसकी वजह से तुम नियर ऑब्जेक्ट को फोकस कर पाते हो। पर एट द एज ऑफ दिस इलास्टिसिटी इज रिड्यूस्ड, दैट्स व्हाई पेशेंट having facing difficulties to focus the near object, and that condition is called presbyopia। तो इनिशियल स्टेज में अगर 40 से 45 एज ग्रुप है तब उसको हम कितना देते हैं, 1 to +1 to 1.25 डायोप्टर का देंगे। ठीक है, फिर 45 से 50 एज ग्रुप का हो जाएगा तब कितना दोगे, 1.5 to 1.75 डायोप्टर दोगे। फिर 50 to 55 है उसको तुम दोगे +2 डायोप्टर से 2.5 डायोप्टर दोगे। फिर उसके बाद 60 एंड अबव, इसको +3 डायोप्टर एंड मोर अकॉर्डिंग टू नीड। तो इस तरह से उन लोग का, तो कोई 40 साल के बाद में आ रहा है चश्मा, तुमने उसको दे दिया, उस समय वो प्रेसबायोपिक ग्लासेस पहन रहा है, 1 साल 45 साल 50 में आएगा तो वो चश्मा उसको काम नहीं करेगा, क्योंकि इलास्टिसिटी फिर उसकी बढ़ गई है और इलास्टिसिटी रिड्यूस हो गई ना। तो तुमको उसका एकोमोडेशन पावर कम हो गया, तो और हमको एकोमोडेशन पावर को बढ़ाना है तो हम पावर ही देंगे ना, प्लस लेंसेस। तो इसीलिए ये लास्ट मतलब 60 ईयर के बाद फिर +3 डायोप्टर ही उसको देंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। रिफ्रैक्टिव एरर, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और अफेकिया, pseudophakia, astigmatism, presbyopia। and what is pseudophakia? pseudophakia क्या होता है, किसको बोलते हैं हम pseudophakia? when crystalline lens is replaced by artificial lens after cataract surgery, that is called pseudophakia। और तुम सिर्फ कैटरेक्ट को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल रहे हो पर इंट्राओकुलर लेंस इंप्लांट नहीं कर रहे हो, दैट कंडीशन इज कॉल्ड अफेकिया। एंड स्यूडोफेकिया भी 2 टाइप्स होता है, क्या क्या? तुम्हारी बैच का तो ये सब टॉपिक पढ़ाया जा चुका है, लेंस, ग्लाकोमा, ये सब पूरा एंटीरियर सेगमेंट पढ़ा। अभी महेश ने क्या क्लास लिया, लेंस पढ़ाया उस दिन फ्राइडे को क्लास था ना महेश का, तो तुम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा करके उसने फिर से इसलिए रिवाइज पढ़ा रहे हैं उस क्लासेस को, क्योंकि अगर पोस्टीरियर सेगमेंट डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर देंगे तो इंटीरियर ही नहीं समझ में आएगा, तो सब ऊपर से चला जाएगा। क्लास में कितने लोग थे? क्योंकि नहीं रहोगे तो समझ में नहीं आएगा ये सब। तुम बुक से, जैसे अभी मैं जो पढ़ाई हूँ तो इसमें तुमको कुछ तो समझ में आया होगा, पर तुम अभी बुक को जाके पढ़ोगे तो इतना समझ में नहीं आएगा व्हाट इज हाइपरमेट। अगर तो रिफ्रैक्शन, एमेट्रोपिया, इमेट्रोपिया, इसी में ही समझ कंफ्यूज हो जाते। कोरिया जानते हो, व्हाट इज कोरिया, व्हाट इज पॉलीकोरिया? व्हाट इज कोरिया? कंट्री का नाम नहीं है, वो तो हर कोई जानता है। पीपल को बोलते हैं कोरिया, समझ रहे? अगर किसी किसी में मोर देन 1 पीपल होता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीकोरिया। और कोलोबोमा,
व्हाट इज कोलोबोमा? कोलोबोमा सुने हो नाम? क्या है? एनीबॉडी? नॉर्मली जो जो स्ट्रक्चर है, मान लो आइरिस है या लेंस है या फिर तुम्हारा डिस्क है, if part of disc is absent congenitally, that is called coloboma of the disc. If part of the iris is absent, that is called iris coloboma. And sometimes part of lens is also missing, developmental congenital anomaly, that is called coloboma of lens. And coloboma is two types, that is the typical coloboma and atypical coloboma. If the coloboma is present in the 6 o'clock position, कॉमा सेप्ट रहेगा आइरिस उसमें, ऐसा ऊपर से लेकर के ऐसे कॉमा सेप्ट आइरिस किसमें रहेगा? कोलोबोमा आप आइरिस के वाले केसेस में मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड टिपिकल कोलोबोमा. एंड इफ इट इज प्रेजेंट अदर देन 6 o'clock पोजिशन, दैट इज कॉल्ड एटिपिकल कोलोबोमा. हाँ, और विजुअल एक्विटी किसको किसको समझ में आया था उस दिन? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? नहीं, क्या है, तो 4-5 ही लोग तो थे उस दिन, बाकी और लोग को विजुअल एक्विटी को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? चलो बोलते जाओ एक एक जने, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगी. हाँ, इस स्नेलेंस चार्ट से फिर क्या करोगे? सेकेंड, हाँ ना, रिकॉर्ड कैसे करोगे? पहले पेशेंट को कुछ तो बोलोगे, और हमेशा सबसे पहले एक बार और सुन लो रिवाइज करके, तुम लोग पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी, ठीक है? मिरर और स्नेलेंस चार्ट है ना, पेशेंट जहां पर बैठा रहेगा और स्नेलेंस चार्ट के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 6 मीटर. पर अगर रूम छोटा है और रिवर्स इमेजेस है तो वो 3 मीटर्स का रहेगा. तो मिरर के सामने तुम्हारा 3 मीटर हो गया, बिहाइंड द मिरर इज 3 मीटर. ऑलवेज एग्जामिन फर्स्ट इन द राइट आई, ठीक है? हमेशा लिखो राइट आई फर्स्ट, राइट आई को एग्जामिन करोगे और अदर आई को कवर करोगे. और कवर करने के लिए क्या करोगे? या तो ऑक्लूडर से कवर करोगे, कार्डबोर्ड से कवर करोगे, या पाम से करोगे. कुछ लोग ऐसे उंगली से ऐसे दबा लेते हैं, तो वैसा नहीं करना है. उस तरह से दबाओगे तो क्या है, प्रेशर की वजह से जब अदर आई का कवर करके इस आई का जिसपे दबा दिया है तुमने, उस आई का विजुअल एक्विटी करोगे तो वो सही नहीं आएगा. समझ रहे हो? ड्यू टू प्रेशर इफेक्ट. फिर सबसे पहले पेशेंट को तुम बोलोगे कि टॉप मोस्ट, वहां पर 7 लाइन लिखा रहेगा, सब एक अलग से पैरामीटर में साइज में बना हुआ रहता है, ठीक है? तो सबसे फर्स्ट वाला जो है उसको रीड करने को बोलोगे. तो फर्स्ट वो रीड कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? अगर वो अच्छे से रीड कर पाया फर्स्ट लेटर, तो विजन इज 660 हो गया. तो 660 का क्या मतलब होता है? जिसको 60 मीटर की दूरी से, जैसे तुम ट्रेन में बैठे तो बहुत सारा दूर का लेटर्स दिखता है, हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? पर जो स्मॉल लेटर्स है वो हम रीड नहीं कर पाते, पर जो जिसका साइज बड़ा रहता है और उसको हम रीड कर पाते हैं. तो वैसे ही वो जो साइज का लेटर है, जो फर्स्ट लेटर, उसको तुम 60 मीटर के डिस्टेंस से आराम से एक नॉर्मल पर्सन रीड कर सकता है. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 6/60. देन सेकेंड लेटर को 6/36, फिर 6/24, फिर 18, फिर 12, फिर 9, 6. पर अगर कोई पेशेंट 660 नहीं पढ़ पा रहा है तो उसका विजन करने के लिए क्या करेंगे? तो उसका डिस्टेंस को रिड्यूस करोगे, तो उसका हो जाएगा 5/60, 4/60, 3/60, 2/60, 1/60, ठीक है? 1/60 भी नहीं है. उस दिन जिसका रिकॉर्ड किया था कौन था? हाँ, इसका कितना था? इसका विजन 160 विजन, और ये
लेजी आई वाली कौन थी? एक, हाँ ये। तो तुम रिफ्लेक्शन कराई नहीं फिर? क्यों? क्यों नहीं कराई? तो घर में जाके क्यों कराओगी? घर तो कब न जाओगी ना कब जाओगी। तो तुम करा के चश्मा पहनो, समझ रहे हैं? थोड़ा बहुत जो अदर आई में दिख रहा है वो भी नहीं तो चला जाएगा, फिर धीरे धीरे आई डाइवर्ट होने लगेगा, समझ रहे हो? 10 इयर्स हो गया फिर भी से करने से ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है? फिर उसके बाद काउंट फिंगर 1 फीट, 3 फीट, 2 फीट, 1 फीट, 1 फीट, देन हैंड मूवमेंट करोगे। हैंड मूवमेंट नहीं होने के बाद भी पीएल पीआर करोगे। व्हाट इज पीएल एंड पीआर? इज प्रोजेक्शन ऑफ रेस। तो और इसके बाद ये तो यहां तक का है, पर अगर 660 विजन है, ठीक है, तो 660 तक विजन है तो हम ये तो अगर नहीं होगा तब इधर बढ़ेंगे, पर अगर 660 है और 636 उसका नहीं हो रहा है तब क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में हम पिन होल से विजन लेंगे, ठीक है? तो अगर पिन होल से विजन ले रहे हैं और विजन इंप्रूव हो रहा है विथ पिन होल, मींस पेशेंट इज हैविंग रिफ्रैक्टिव एरर। और अगर पिन होल से इंप्रूव नहीं हो रहा है तो मे बी पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अदर कंडीशंस, मे बी कैटरेक्ट, कॉर्नियल ओपेसिटी और डिजीजेज इन द पोस्टीरियर सेगमेंट, ठीक है? तो उस कंडीशन में अगर रिफ्रैक्टिव एरर है तो रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट करके उसको ग्लासेस दे देंगे अकॉर्डिंग टू जो भी उसका रेटिनोस्कोपी जो फाइंडिंग आएगी और एक्सेप्टेंस जो होगा। ऑटो रेफ करके रेटिनोस्कोपी करोगे, फिर जो पावर दोगे उसको हम अंडर करेक्शन देते हैं। एवरी पेशेंट को अंडर करेक्शन क्यों देते हैं? अगर ओवर करेक्शन करोगे तो वो हाइपरमेट्रोप हो जाएगा। मायोप पेशेंट है, हाइपरमेट्रोप हो जाएगा, क्योंकि कुछ तो एकोमोडेशन से तो वो करेगा ही करेगा, समझ रहे? इसीलिए एकदम पावर को बढ़ा के नहीं देना है, अंडर करेक्शन देना है उसको। अब तुम लोग हिस्ट्री टेकिंग और एग्जामिनेशन ये सब पढ़ के आना, क्योंकि जो केस प्रेजेंटेशंस वगैरह होता है उसमें किसी को अभी तक तो कुछ याद, पिछले साल जो पढ़ा है वो तो अब सब ऊपर से चला गया होगा। तो उसमें बुक में पूरा पॉइंट दिया हुआ है हाउ टू एग्जामिन, तो अलग अलग पूरा कंजक्टाइवा का बहुत सारा पॉइंट है, कंजक्टाइवा को कैसे एग्जामिन करोगे, कॉर्निया, ये सब का, तो वो सब पढ़ के आना।